عورت کے ہاتھ میں بڑی لذت دی ہے. ہماری مائیں جو کھانا بناتی ہیں اس میں بڑا ذائقہ ہے, ہمیں کسی اور کا کھانا اچھا ہی نہیں لگتا. تو پھر یہ مجھے بتائیے کہ مرد شیف کیوں ہوتے ہیں؟ جدو 250-300 بندے کا کھانا پکانا ہوئے مرد ہی پکا سکتا. نعمان میاں, عورت ہنڈیا میں تو ڈوئی چلا سکتی ہے, دیگ میں ڈویا نہیں چلا سکتی. ویسے عورت کھانا پکاتی یا مرد کھانا پکاتا, فرق کیا ہے؟ عورت کھانا پکاتی وہ مفت ملتا ہے, مرد پکاتا ہے پیسے دینے پڑتے ہیں. جو بڑی عورتیں تھیں نا, مطلب ہماری اماں کہہ لیں, چاچی کہہ لیں, تائی کہہ لیں, سیانی عمر کی, وہ کھانا پکاتے پکاتے ساتھ کچھ پڑھ رہی ہوتی تھی, درود پڑھ رہی ہیں یا کچھ پڑھ رہی ہیں تاکہ کھانے میں برکت رہے. تو ہوں تو کڑیاں نو اپنے فیشن چ نہیں ویل ہانڈی اتنے رکھ کے میک اپ فڑیا ہوں, وہ پتہ لگیا سرخی ہانڈی چ پا دی تو مرچاں اتنے لا لیا. ہوں جلدی ہے نازک, مطلب اسامیاں جی ارگی ہانڈی پکا رہی ہوئے تو دیکھ لو کنی کی پکنی ہو, مطلب دل کرے گوشت دے ستار ویکھن لگ پن. یہ جو بوٹی ہے نا, میں بہت اچھا کھانا بناتی ہوں. کھانا پکا کے آپ رکھ لیتے ہو, آپ کھانا پکا کے رکھ لیتے ہو, بچوں کو کہتے ہو دیکھو تم نہیں پراٹھا کھا سکتے, تمہارا ستارہ زحل میں ہے. تمہیں میں تھوڑے سے مٹر آلو دیتی ہوں کہ تمہارا ستارہ اور زحل ستارہ آپس میں ملنا چاہ رہے ہیں, لیکن تم اچار تھوڑا سی اس لیے لے لو, تمہارا ستارہ اس وقت کھٹائی کی طرف جا رہا ہے. آپ نے کبھی کھانا بناتے ہوئے بکرے کا بھی ستارہ دیکھا ہے؟ اور تو آڈا ویکھیا بکرے نہ ملتا ہی سی. نہیں, عورت کے کھانے میں برکت یہ ہوتی ہے کہ پھوپھی, ماں, تائی, چاچی, بیوی, چھوٹی بہن, بڑی بہن, وہ جب کھانا دیتی ہے نا, لو بھائی جان, سلا مار دی, بھائی جان اور لے لو, چھوٹے تم بہت کم کھاتے ہو اور لو. مرد کا بنا ہوا کھانا ایک دوسری باری منگو نا, میں تیری لت بن دیا گا. بتائیے سامنے جی. میں بڑی بلیو کرتی ہوں اس بات کے اوپر. آپ دیکھیے جو سلائی کی نفاست مرد ٹیلر کے ہاتھ میں, عورت ٹیلر کے ہاتھ میں. عورتیں جو ڈیزائنر ہیں انہوں نے بھی مرد صاف رکھا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. سو اس کا مطلب ہے, یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ بیہائنڈ ایوری سکسیسفل وومن دیر از اے مین. مرد جیسے گھر کی چار دیواری کے اندر بچوں کی اس طرح نگہداشت نہیں کر سکتا جس طرح ایک عورت کر سکتی ہے. تو یہ اگر عورت کو گھر میں ایک مرد بہترین پرووائڈر ہے تو میں نہیں کہوں گی کہ آپ کمپلیکس میں جائیے کہ آپ گھر سے باہر نکل کے کما نہیں رہی ہیں. آپ جو ایک نئی نسل تیار کر رہی ہیں, اس سے بڑی اور کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہو سکتی. چلیے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی آج کی ہماری مہمان سے. چھوٹی اسکرین کی بہت بڑی اداکارہ, جو بھی کردار کیا بڑا ڈوب کے کیا, اور اس وقت بھی جو کردار کر رہی ہیں اپنی حقیقی زندگی میں بہت ڈوب کے کر رہی ہیں. بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا محترمہ سعدیہ امام صاحبہ جی. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کے شوہر جناب عدنان حیدر صاحب. کیا ہے جناب؟ عرض نہیں کر سکنا, تیرا اولیا حکم کرنا لائے گا. عرض کیا ہے موتیے کی کلی اور عرق کے گلاب کا جام. یہ میرے منہ سے کیا نکل گیا؟ کیا منہ پہ ہاتھ رکھا؟ موتیے کی کلی اور عرق کے گلاب کا جام سمجھ تو گئے ہوں گے عدنان حیدر اور سعدیہ امام. سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ دونوں کو ہم مذاکرات میں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اوور. اوریجنلی دلہن بن کے کیسا لگ رہا ہے؟ وہ سارے ڈراموں والی جو بیوی کے جو تھوڑے تھوڑے ایکسپیرینس تھے وہ اس میں کام آ رہے ہیں. بتاؤں بہت کام آئے, ہے نا, بہت کام آئے, کیونکہ مجھے شادی کے بعد احساس ہوا کہ واقعی ڈرامہ حقیقت کے بہت قریب ہے. بہت قریب ہے. یعنی کہ شادی کے بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس ڈرامے والا شوہر ہے. ویری گڈ. اس کے لیے میں یہی کہوں گی. تو پھر پہلا سوال سعدیہ جی سے یہ لے لیتے ہیں, یہ کون سے ڈرامے والا شوہر ہے؟ اس کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ شوہر کے لیے پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ اس ڈرامے کا ہے یا اس ڈرامے. شوہر ہوتا ہے, اور عورت کو اس بلیف کے ساتھ اس رشتے کو قبول کرنا چاہیے کہ یہ مجھ سے سپیریئر ہے. ارے بہت اچھی بات.
مجھے بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے نعمان بھائی کو 10 سال بعد پتا چلیا کہ ڈرامے دے سین نے جیڑی انہاں دی بیوی بنتی سی وہ پیچھے ٹر پیندے سن بھائی تم تو میری بیوی ہو کہندی بھین میں ڈرامے جا تک ہن تسی گھر جاؤ میں اپنے خاوند نہ جاؤں سعدیہ جی اپنی اپنی جگہ پہ دونوں ہی سپیریئر ہیں، ہاں یہ تو ہے اپنے اپنا مقام ہے، بے شک. یہ کہیں بھی نہیں سپیریئر. تو میرا سپیریئر ہونے کو ضروری ہے. ان کے لیے میں صرف یہی کہوں گی کہ چراغ تل ہمیشہ اندھیرا ہی ہوتا ہے، یہ وہ چراغ ہے. اسٹار بیگم اگر اسٹار ہو تو بندہ تھوڑا سا کمپلیکس میں آ جاتا ہے کہ سب جانتے ہیں میری بیگم کو. یہ فیلنگ آتی ہے؟ نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا. نہیں. تھوڑا بہت کمپلیکس تو ہوتا ہی ہے نا، سیٹوں سے بال چھوٹے ہو جاتے ہیں. The way she is being welcomed everywhere. تو وہ تھوڑا سا تو ہوتا ہوگا. ہاں لیکن یہاں پہ میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ جب آپ یعنی یورپ میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہر چیز آپ کو خوبصورت نظر آتی ہے سارا کچھ، لیکن یہ کہ جب یہ وہاں پر آئیں اور پھر جب ان کو جب میں لے کر گیا اپنی ہماری جو کمیونٹی ہے وہاں پہ، تو وہاں مجھے ہوا یار یہ واقعی ان کو سب جانتے ہیں. اس سے پہلے یہ مجھے نہیں جانتے تھے، نہیں جانتا. انہوں نے میرا کام نہیں دیکھا ہوا تھا شادی سے پہلے. تو یہ کیسے ہوئی ملاقات؟ تھوڑا سا اس پہ تو روشنی. ہاں یہ بہت انٹرسٹنگ ملاقات ہے. ان کی جو سب سے چھوٹی بہن ہے ہنا، وہ اور ہم لوگ ایک ہی ڈیفینس میں سب ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں، تو ملاقات بھی رہتی تھی. تو اتفاق سے ایک دن میری نند کا، تو میری نند ان کا فون آیا کہ بھائی سنو میرا بھائی جرمنی سے آیا ہوا ہے اور بہت مشکل سے ہم نے اس کو پھنسایا، جب ہم نے اس کی شادی کر کے بھیج دی ہے. کوئی پیاری پھنسا کے مارا ہے. ہاں پھنسا کے مارا. بہت مانتے 20 سال بعد آئے تھے یہ، آپ سوچیں جرمنی. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ ہے کہ کوئی اس کی ڈیمانڈ ہے لمبی لڑکی ہونی چاہیے، اچھا اور لمبی ہو اور خوبصورت بھی ہو اور ٹاکٹیو بھی ہو. تو میں نے کہا اتنی ساری ڈیمانڈ، خیر ابھی تو میں شو میں ہوں بھابھی میں دیکھوں گی کہ کیا ہو سکتا ہے. میں نے 2-4 جن لوگوں کو میں جانتی تھی ان کے گھر ان کو بھیجا بھی. ہاں انہوں نے کہا تم ایک کام کرو میرے بھائی سے ایک دفعہ ملو تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی نا. جب یہ ملنے کے لیے آئے تو وہ ان دنوں ایک بہت حادثہ کراچی میں، تو میں اس کی شوٹنگ سے واپس آ رہی تھی، وہ بلدیا ٹاؤن والا جو ہوا تھا. تو عجیب میں اپنے کسی الگ موڈ میں تھی اور میک اپ بتاتے، میں کہا ہاں جی بولیے کیا. تو میں نے کہا اتنی اچھی اچھی لڑکیاں تو تم دیکھ کر آئے ہو، اب یہ مجھے بتا رہے اس کا یہ تھا، اس کا یہ مسئلہ تھا، کچھ ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ تھا، کچھ یہ تھا. میں نے کہا دیکھو اتنی ساری چیزیں ایک وقت میں تمہیں نہیں ملیں گی، تم بھی بالکل کمپلیٹ کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا. اب تمہیں ہیل بھی پسند ہے، تمہیں لڑکی بھی لمبی، اب تمہیں لمبی لڑکی مل گئی، کمپرومائز کرو. ہیل پہنے وہ تم سے اوپر چلے گی تو اب تم کیا کرو. میں کہا ہیل پہنا کے لڑکیاں برابر آ جاتی ہیں، اور کانفیڈینس انسان کے اندر ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز پرفیکٹ مل جائے. تو پھر آپ نے کیا کمال کیا، آپ کی محبت کہاں چلی گئی. وہ خوب لیکچر دے کے میں نے بھیج دیا. 3 دن بعد میری نند کا فون آیا، میرا بھائی کہہ رہا ہے سب سے اچھی مجھے وہی لگی ہے جس سے میں مل کر آیا ہوں. نعمان جی میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں جن کی بیٹیاں ہیں رشتوں کے لیے. آپ یقین کیجئے کہ شادی وہ واحد چیز ہے جس میں انسان کی اپنی عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. یہ قدرت کا فیصلہ ہوتا ہے، صرف قدرت نے ایک دوسرے تک پہنچانا ہوتا ہے. جو ان کی سٹوری سن کے لگ رہا ہے کہ یقین کیجئے کہ اس میں آپ بڑا ہوتے جی پنی ایسی محبت میں پھنسا لیا کسی کو، ایسا کچھ نہیں ہے. جی ہاں، جو بات یہ فیکٹ ہے کہ جو ہوتا ہے جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے. ورنہ مجھے کبھی یہ نہیں تھا کہ میں جاؤں گا اور میں پھر اتنا بڑا ان کا نام اور پھر میں ان سے شادی کروں گا، ایسا کوئی کچھ نہیں تھا. اور اب تو یہ ماشاءاللہ سے بیوی بہت اچھی ہیں. اور حقیقی زندگی میں جب رخصتی ہوئی تو روئی تھی؟ نعمان ایکچولی وہ تو ایسا لمحہ تھا، میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی 12 دن پہلے شادی سے، تو وہ ایک لمحہ ہی ایسا گزرا تھا آپ کا. اور امی کا 40واں گزرا، میری مائی ہوئی اور سادگی سے رخصتی ہو گئی. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ پورا رونے ہی میں گزر گئی وہ ساری چیز. اور اب تک مسنگ تو ہے کہیں نہ کہیں اس چیز کو اس طرح. ویسے یہ تو نعمان بھائی آرٹسٹ ہے نا، ان کو تو پتا کہ یہ ایسے لمحات پہ ایسا ہوتا ہے.
ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਮੋਢਾ ਹੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। मैंने वो देखा हुआ तमाशा, वो आवाज ज्यादा होती थी, आंसू शांसू कोई परफॉर्म कर रही होती है। अब घूंघट नहीं होता, पहले तो घूंघट रखते थे, हाँ जी। अब तो दुल्हनों के घूंघट नहीं होता, अब वैसे पासू भी- है तो दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। वैसे भी इतना एक्सपेंसिव हो गया है मेकअप, बिल्कुल। अब तो वो यही खतरा पड़ा रहता है कि मेकअप न हो जाए। हाँ आधा घंटा आज दी दुल्हन रोल वे तो बाद पछाणी नहीं नहीं, जाती। नेचुरल फीलिंग आप उसको रोक नहीं सकते, बट एक खुशी का वक्त है, खुशी अगर कोई, मैं कहती हूँ लड़कियां नहीं रो रही हैं और वो बहुत अच्छा कर रही हैं कि खुशी अपनी जिंदगी का आगाज कर रही है, तो उसमें भी अब लोग बातें करते हैं, हाँ दुल्हन तो रो भी नहीं हुआ अपने माँ बाप से। ये पिछले लेकिन दिन ये एक भी शादी पे गलत गया है। तो लड़की रो ही नहीं रही थी दुल्हन। मैंने कहा चुप बैठी है कुड़ी, रो नहीं रही। अखीर उन्होंने जाके पूछ लिया, मैं क्या मैडम आपकी शादी, आप रो क्यों रही? कहती मैं क्यों रोवा, रोण हो जेड़े मैनू लैके चले। आशिकी में मीर जैसे ख्वाब मत देखा करो, जागते में रेशमो कम ख्वाब मत देखा करो। पार्टी में और भी तो लोग हैं काबिल बड़े, अहम ओहदों के लिए अहबाब मत देखा करो। डीजे अपनी आंखों पे रखो जरा काबू मियां, बाबले हो जाओगे महताब मत देखा करो। पता तेनू कद्दू दा नहीं ते हालात कराची दे डिस्कस कर। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। शादी के बाद इनके कोई ड्रामे देखे आपने, कोई नजर से गुजरे? हाँ देखे, काफी देखे, सीडीज वगैरह लेके आई थी, उसके बाद भी रिपीट होते रहते हैं वहाँ पे। फिर मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया ड्रामों में या इनमें? मेरे वजह से ड्रामा में कि देखो तो सही। जी माशाल्लाह जी, पूरे पाकिस्तान का दिल आपने जीत लिया। आपके ख्याल में माशाल्लाह आपने भी दुनिया देखी है और इतने अरसे से बाहर है, ये अदाकारी में ज्यादा बेहतर है या एज अ बेगम ज्यादा बेहतर है? दोनों में अच्छी हैं। दोनों में ठीक है। हाँ दोनों में ठीक है। आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं, उन्हें घर वापस नहीं जाना? जर्मनी में कितने अरसे से हैं अदनान साहब? मैं 20 साल से। 20 साल से हैं। तो आप जर्मनी में रहते, तो जर्मनी वाले किधर रहते हैं? तो हमारे साथ रहते हैं। वो शाम को आ जाते हैं ना। वो साथ। क्या वहाँ पे क्या कारोबार है और ये सारा कुछ मेरा अपना बताएंगे अपने बिजनेस हवाले है, से? हाँ इटालियन रेस्टोरेंट का। अच्छा ओके। हाँ उसके साथ साथ पिछले 5-6 साल से मैं ऑक्शंस के घर लेके उसको रेनोवेट करके हम लोग सेल करते हैं। जर्मनी में चाइनीज रेस्टोरेंट हो तो समझ में आता है, इटली तो बिल्कुल साथ ही है, तो हाँ। इटालियन रेस्टोरेंट ये समझ में नहीं आता। नहीं चाइनीज वगैरह नहीं, क्योंकि इटालियंस वहाँ पे बहुत हैं। बहुत हैं। यूरोप कंट्री, हाँ इटालियंस हो गए और जर्मन, तो वहाँ पे जब हमने देखा यार चार्म इस चीज में ज्यादा है, क्योंकि इंडियंस जितने सरदार वगैरह हैं उन सबका भी यही सब काम है और उसका यानी बैकअप बहुत अच्छा है। बाय प्रोफेशन इज अ शेफ। दुनिया में ज्यादा मर्द शेफ क्यों है? व्हाट्स द रीजन, व्हाई नॉट विमेन? क्योंकि देखें अब रेस्टोरेंट के काम में ये होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं मुस्माद स्नेल, ये जर्मन में कहते हैं कि मुस्मा स्नेल माखन, यानी इसका मतलब है कि आपने तेज काम करना है। फुर्ती जो है वो मर्दों में ज्यादा होती है और इस फील्ड में बगैर फुर्ती के ये काम नहीं होता है। मैं घर में ही देखती थी कि अदनान का हाथ इतनी तेज से ठक 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 चलता है, मैं उतनी देर में सोच रही होती थी कि अच्छा आलू गोश्त बनाना है, प्याज काटनी है, आलू छीलना है। अदनान मैं कर चुका हूँ, आप जल्दी से देख लीजिएगा। मैं खत्म, मैं कहा अच्छा हो भी गया। तो ये जो फुर्ती है ना, ये औरत में वाकई नहीं आती। तो आप इनकी वहाँ मदद करती हैं इस काम में? इनके काम में तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ लैंग्वेज का बहुत मसला है और ये काम मुझे आता नहीं। हाँ लेकिन इनका जो एक ख्वाहिश है और इन्होंने अपना असूल भी रखा है कि घर का खाना ये खाते हैं, तो वो इनको मिलता है। अरे वाह, अरे वाह। चाचा आपको बताएंगे कि करेले गोश्त कैसे बनता है? बताएंगे क्यों, खिलाएंगे क्यों नहीं? मैंने भी सुने हुए हैं, पकाए नहीं है। छोटा छोटा गोश्त पीस किए, छोटा छोटा। हाँ। गोश्त में डालना कि छोटा? तू बाहर बैठ, तेरे वर्ग के बाहर बैठ दे। छोटा छोटा गोश्त, उसमें प्याज टमाटर मिर्चें हरी मिर्चें डाल के उसमें पानी डाल के रख दिया, वो जब पानी सूख गया उसको भून लिया, बीच में करेले डाल दिए, लंबा प्याज काटना है, छोटा नहीं लंबा प्याज, जरा जफ्फी पालवे बोटियां नूं। हम पहले भी बात कर रहे थे कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं और इस जोड़े के लिए वो एक इंडिया का गाना नहीं है और हम चाहेंगे भी कि हम इन्हें डेडिकेट करें वो गाना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। स्वीट। अरे सामिया जी, आपकी फरमाइश और डेडिकेट भी इनको करना है
तो फिर तो रौनक लगेगी। हाँ? तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसको कसम लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसको कसम लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। और मुझे खबर शादी का कब तक इरादा है? शादी कर ली मैं, कर ली? हॉस्पिटल से शादी होगी। मैं सबके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं हॉस्पिटल से शादी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। इतनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजरी है आपकी माशाल्लाह, तो हाउ डू यू फील कि एकदम एक ऐसा डायरेक्टर आके बैठ गया है जिसने अब हटना भी नहीं है और डायरेक्शन में मुझे काम करना है, हाउ यू टेक इट? ये मेरा ख्याल है, शादी जब आप ये सोच रहे ना कि अब आपने शादी करनी है, तो ये चीज आपने सबसे पहले यही चीज को फोकस करना होता है कि अब अपनी भागदौड़ आप किसी के हाथ में दे रहे हैं, पहले आपके हाथ में होती है। तो शादी जब इनका रिश्ता आया था तो मेरे अम्मी को बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि नहीं नहीं फैमिली भी नकवी है और बस रुकना भी नहीं है और जल्दी बहुत अच्छी फैमिली है वो। तो पापा ने कहा सब्र करो, मुझे से बात कर दें। तो मुझे पापा ने 2 जुमले बोले थे, वो ये थे कि सादिया से इमाम को हटाओ, सादिया इमाम जो है ना उसको साइड पे रख दो, मैं साइड पे रखनी होगी, जिंदगी बहुत हसीन है। अरे वाह वाह। तो वो मैं जिस दिन निकाह हुआ उस दिन मैंने साइड पे वही रख दी थी। और पापा से कहा था मैंने इस मैं को साइड और पे ये रख दी, कोई और ये सियासी गवाह बयान इस बात नहीं की कि है। वो चीज आती नहीं है। मैंने कहा ये कोई सादिया का सियासी बयान नहीं है, सचमुच शी डिड दैट। वो नजर आता है कि जो उन्होंने सेक्रीफाइस दिया, हालांकि सादिया के मिजाज में बहुत शिद्दत पसंदी है, शी इज नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल, बिल्कुल। लेकिन नजर आता है कि जो कॉम्प्रोमाइजेज उन्होंने किए हैं वो हैट्स ऑफ के ये उनके। आपको भी कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा जी? मुझे कंप्रोमाइज तो बस ये था कि जैसे जब मैं हमेशा सिंगल रहा हूँ वहाँ पे, अब ये है कि सबसे बड़ा चेंज तो यह है कि प्रॉपर घड़ी लगाना शुरू कर दी। सभी को इंतजार कर रहा है घर जाओ। हाँ, और दूसरा ये कि जाहिर सी बात है रिश्ते देखें जो भी हो खूबसूरत आपने खुद बनाने पड़ते हैं। तो ये था कि कुछ चीजें जाहिर सी बात है मैं हमेशा अकेला रहा हूँ तो मुझे यानी वो होता था यार ये क्या कह रही है लेकिन ये कि मैंने कहा नहीं चलो बीवी सब कुछ छोड़ के मेरे पास आई है और सब कुछ। तो दोनों के लव स्टार्स इस कदर स्ट्रॉन्ग हैं, तो जो इनकी मोहब्बत में एक दफा गिरफ्तार हो गया दोनों की, तो उसके बाद फिर वो किसी और जगह रहता नहीं। मतलब जो भी इनकी जिंदगियों में कभी डेडली है, दोनों डेडली हैं। दोनों जो है इस मामले में, और वो अल्लाह ने दोनों को सजा दी कि एक दूसरे के साथ बांध दिया कि अब यहाँ से हिलके दिखाएं आप। कुछ चीजें कॉमन हैं आप दोनों में? बहुत जी सादी जी बताएंगे बहुत आप ज्यादा क्या आपकी और अदनान साहब की क्या चीजें कॉमन हैं? हम दोनों में एक कॉमन तो कुछ भी नहीं और सब कुछ है। कुछ भी ना कहा और कह भी गया। जो हैदर साहब हैं ये बड़े अकोमोडेटेड हैं, उनकी छोटे छोटे से पेटी इश्यूज पे छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेज हैं सादिया की तरफ से, क्योंकि सादिया के मिजाज में नजर आता है कि परफेक्शनिस्ट हैं, जहाँ पे वो थोड़ी सी जरा लाउबाली और वो अपने मतलब मिजाज में जरा मनमौजी बंदा, तो ये छोटे पेटी इश्यूज हैं, अदरवाइज को मेजर इश्यूज इन दोनों की जिंदगियों में नजर नहीं आते। चाचा कितनी अच्छी बात की, उन्होंने खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, वाह। पाकिस्तान में खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए बंदे को क्या करना चाहिए? हाँ बताओ। बीवी के थले लग के रहना चाहिए, फिर हर चीज बीवी को ले दो, खुद कुछ ना लो। अच्छा। सर्दियों वाले कपड़े बीवी को ले दो, खुद तौलिया लपेट के बैठो, खुद कुछ ना लो। अच्छा। गर्मियों वाले सारे कपड़े बीवी को ले दो। अच्छा। खुद कुछ ना लो, नहर में बैठे रहो। ठीक। बीवी को नया मकान ले दो, उसी का नाम कर दो। ठीक। दुकान चले ना चले, ग्राहक पड़े ना पड़े, है जी, वो भी बीवी के नाम कर दो। अगर वो फिर भी खुश ना हो तो फिर ताजा ठुडे खाओ। फिर भी बीवी खुश ना हो तो फिर अपनी अना मारो, उससे थप्पड़ खा लो, फिर भी खुश ना हो, उनको कर्मा लिए मैं थक गया, तेरा राह आओ तो मेरा भी आओ। ठीक है, मैं आपकी बातों पे अमल करूंगा।
चाहे मुझे कोई जंगली कहे। सामने जी जरा बताइएगा। अच्छा जी, जो अदनान है इनका एक ही वीक पॉइंट है, वो इनकी कमजोरी भी है, जिसपे इनको अपनी जिंदगी की कोई खुशी नहीं लगती होगी, जो इनका होम लैंड है, जो इनके माँ बाप का घर है। लेकिन एक खुशकिस्मती है अदनान की कि वो ससुराल की मोहब्बत के मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं, तो ये चीज इनकी इस तरह जो है वो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन इनका घर इनकी बड़ी कमजोरी है, बहुत अटैच्ड है अपनी फैमिली से, बहुत अटैच्ड है। जब आप देखें बाहर रह रहे होते हैं ना, तो वैसी फीलिंग्स बहुत डिफरेंट हो जाती है आपकी, घर वालों के लिए और सबके लिए। आप सोचते हैं, और घर वालों से तो प्यार जरूरी होता है, तो इस वजह से अब वालदा की थोड़ी एज हो गई है, तो ये था कि थोड़ा सा दिल चाहता है कि यार मामा हमारे साथ ही टाइम थोड़ा स्पेंड करें, क्योंकि जो आपको खुशी माँ बाप के साथ मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। पंजाबी समझते हैं आप? हाँ, मेरे पास सरदार वहाँ काम करते हैं, ऑडियंस वगैरह बहुत है। तो सरदार तो बड़े फैन है हमारे। वो बड़े, हाँ वो बड़ी अच्छी कौम है सरदार। वैसे सदादी कौम, एक सरदार जी ने पट्टियां बनिया, मैं सरदार जी की होया, कहंदा यार कल नवी गड्डी लई इंज करके मैं लै के गड्डी रोड ते निकलिया, मैं इंज करके मोड़ी है ते उत्थे मोड़ ही नहीं सी। उन्हें कहना है नहीं, उन्हें कहना इंजी नहीं, उन्हें तां करके मोड़ी सी, वो तां करते हैं। तो अगर हम आपसे फरमाइश करें पंजाबी का कोई गाना सुना दें? नहीं, इतनी अच्छी पंजाबी नहीं है। चलिए उर्दू का सुना सकते हैं। हाँ। खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह चल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह चल जाएगा यहाँ नहीं आ। जो नहीं सुनता उसको जब जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। थैंक यू। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मॉर्निंग शोज भी आपने किए और बिल्कुल। एक बड़े लंबे अरसे के लिए, तो डोंट यू थिंक सो मॉर्निंग शो इज अ सेफ बेट? या अगर मॉर्निंग शो कर बिल्कुल बिल्कुल, और इरादा भी है। टाइम 2 बिल्कुल। घंटे में सुबह मॉर्निंग शो आपने किया, उसके बाद यू कैन स्पेंड द एंटायर डे एट बिल्कुल होम। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह देखें, 1-2 प्रोजेक्ट पे बात चल भी रही है इसी हवाले से, तो अल्लाह ने चाहा और मेरे हक में बेहतर हुआ। लेकिन अभी यहाँ है कि अभी कुछ अरसे में हूँ यहाँ, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अभी तुम कर सकती हो, यहाँ रह सकती हो। जब ये मॉर्निंग शो किया करती थी तो यहाँ तक कि अल्ताफ हुसैन साहब भी वहाँ से फोन किया जी करते। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुबारक का फोन आया? बल्कि हमें उन्होंने डिनर पे भी बुलाया था जब हम जर्मनी में थे। उन्होंने कहा था कि बेटा ये मत समझना कि तुम मैका पाकिस्तान छोड़कर आई हो, मैका तुम्हारा लंदन में भी है। तो वो मैं भाई सिरमार के लिए नहीं यहाँ के यहाँ पे पीसीआई के भी कुछ लोग बैठे। खान साहब ने भी दावत दी? खान साहब से मेरी कभी इस तरह की बातचीत हुई नहीं, लेकिन यकीनन जब इस तरह मुलाकात होती है तो सबकी तरफ से विशेष बहुत मिली थी मुझे। खान साहब ने अपने ब्याह किसी ने नहीं सद्या, किसी के ब्याह उन्होंने की जाना। पढ़े लिखे मियां बीवी जाता मिच्योर रहो। होते हैं, जाओ अपना काम इंजॉय करो, इट्स ओके, जो जम के करना है। अनपढ़ मियां भी मैं लताम बांध लिया उधर वेख खबरदार। पढ़े लिखे खामद है, मैं खुद ही खाना गर्म कर लेता हूँ, तुम बैठो है, कहाँ उठोगी, बैठो है, मैं तुम्हारे लिए भी गर्म करती हूँ। पर इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हाँ तो अनपढ़ खामद बिस्ती कर रोटी लाया पागल दिए पुत्र।
तेनू बच्चन वालियां होईयां इसीलिए तो हम डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट हैं बहुत बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਵੰਦ पढ़े लिखे बीवी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਜੀ मेरी अम्मी का मेरी बहनों का गुस्सा मुझ पे उतार लो बस ठीक है कोई भी इस वक्त देख रहा मुझे मार लो है क्यों है? और है कोई सखी जो चिंची की आवाज बंद कराए बड़ा स्टाइल आज बना के आए हैं। बाबे यो है ना जो बातें हैं, लेकिन आज हम किसी और मौजू में बात करेंगे आपसे। ओ इंटेलेक्चुअल हो गए बिल्कुल। तेरे मुंह पे वैसे पैंदी नहीं गल आज हम कराची के हालात के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। कोई बात नहीं बच्चे बाबे इस मौजू पे भी तेरे नाल गल कर लेंगे लेकिन उससे पहले बाबे के एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। पूछिए। ये कद्दू का रंग पाकिस्तान में ग्रीन, बांग्लादेश में येलो और इंडिया में रेड क्यों होता है? पता नहीं मुझे। पता तेनू कद्दू दा नहीं ते हालात कराची दे डिस्कस करेंगे। जो कि साधु संत फकीर है माशाल्लाह क्या कहने जहे नसीब जर्मनी तो आए हो जी ये भी नाड़ी जी मैं इनके साथ आई हूँ। अरे क्या कहने हीरो आदमी लग रहे हैं माशाल्लाह। कोई अकल कर फिर सियाने कहते नहीं कि लप्पी बुक्की मिट्टी पावन ते ढेर बनावन उचेरा ते पढ़ दरूद घरां नूं जांदे वत नहीं पाउंदे फेरा। देख जरा जोगी साधु संत फकीर तेरे प्रोग्राम में अगर आया है तो शायद ये साहिबा जर्मनी से आई है। बाबा इनको सांप निकाल के दिखाएगा बच्चा। माशाल्लाह। देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी सांप निकालने जा रहा है। सामिया जी 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 वाह वाह आज ते चिट्टे काले ही होए हो दौर रंगीन चल पे तुसी ब्लैक एंड व्हाइट हो। देख जरा एक चटपन चौक चपन चटपन तुम तड़ाक छू चड़ाक आ उधर देख देख रहा उधर देख एक चटपन चौक चपन चटपन तुम तड़ाक छू चड़ाक हाँ ये काली कलकत्ते वाली तेरा वार ना जाए खाली जो भी है हाथ में लेके थाली और मंगर लेके जाए हे दागड़ा कर दीनता खरिया बोतला सुचियां बोतला आ ए कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू भाई बूझ माली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर ए हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर भाई दागड़ा कर दीनता आ निकले नहीं। हाँ अल्लाह फिर प्याला निकले यही बच्चे सियाने कहते नहीं कि पी प्याला सबरदा ते कोई नहीं उस साथी कबरदा। वाह 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 एक नाम क्या लिखा तेरा साहिल की रेत पर फिर उम्र भर हवा से मेरी दुश्मनी रही। तो एक ले ले ब्रेक जल्दी से, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों के सितारों के हवाले से बात करेंगे। सामिया जी से डीजे हुस्न लाला फाम जरा आंख तो मिला, तुझसे बड़ा है काम जरा आंख तो मिला। ये गुर्बत महंगाई मिटाने में अगरचे तू हो गया नाकाम जरा आंख तो मिला। जो सुन रहा है आज तू डीजे की ज़बानी है कौम का पैगाम जरा आंख तो मिला जरा आम इंसान अब तू भी जरा बचना अपनी मदद आम के तहत अब बचना। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मिमिक बहुत अच्छी हैं। अरे वाह मतलब किस को कॉपी किस करती को नहीं। तो कोई आप हमें सुनाइए अच्छा सा कोई। बीना मलिक साहिबा की भी मिमिक्री कर लेती है। अरे प्लीज मीरा साहिबा की भी कर लेती है। अच्छा मीरा जी, बल्कि मैं ये जानना चाहूंगा कुछ अदाकाराएं जो हैं वो बड़ी आपकी नकल करती हैं, जैसे सादिया इमाम आपकी बड़ी नकल उतारती हैं और अच्छा। बीना मलिक आपकी बड़ी नकल उतारती हैं। वीना तो देखे ना जिन लोगों को फेम चाहिए होता है उसका नाम पहले आपने लिए कौन वो इस टीवी की लड़की है जी, क्या? सादिया। आयशा इमाम है नहीं, सादिया इमाम। हाँ मैं जानती हूँ वो तो बड़ी अच्छी है, नहीं अच्छा करती है वो। देखिए वीना मलिक को फेम चाहिए ना इसलिए मेरी नकल उतारती है, उसको फायदा नहीं है।
बड़े लोगों की तो हर कोई नकल उतारता है. अच्छा. मैं सीनियर आर्टिस्ट हूँ, मेरा एक नाम है, I'm a star. 16 इयर्स की कोई इतनी हसीन लड़की है नहीं अभी. मीरा साहब, सियासत में दिलचस्पी है, आने का इरादा है आपका? है दिलचस्पी सियासत में, बंदे की हद तक. सियासतदान की हद तक. आप ऐसी बात क्यों करें? मैंने कोई ऐसा बयान दिया है? नहीं. कल को इन्होंने छाप देना है. मैं ऐसी कोई बात ही नहीं करती. तो मीरा साहब, शादी का कब तक इरादा है? शादी कर ली मैं. कर ली? हॉस्पिटल से शादी होगी. मैं सबके वाह वाह. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं हॉस्पिटल से शादी. तो हुकूमत ने जमीन दे दी हॉस्पिटल के लिए? नहीं देंगे इंशाल्लाह, बात चल रही है. किससे? अब देखिए ये बात अभी ऑन एयर कैसे मैं बोलूं? मीरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, प्लीज मीरा बिल्कुल माइंड नहीं करना. इसके बाद एक वाकया सुनाऊंगी आपको इससे रिलेटेड. मुझे ये बताइए, नंबर 1 की दौड़ है, आपके ख्याल में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस कौन है? देखो नोमी, ये बात तुम भी जानते हो कि स्वीट 16 एक ही है बस, नंबर 1. वाकया जो आप सुनाना चाह रही थी. हुआ ये कि 2-3 दफा इत्तेफाक जब स्टार्ट में ये मैंने हुआ मीरा की, तो 2-3 शोज में ऊपर तले इस तरह की चीज ऑन एयर हुई. तो एक दिन मुझे मीरा का फोन आया, सुना तुम मेरी नकल उतारते फिर रही हो. मैंने कहा मीरा अब मुझे समझ नहीं आया, मैं तुमको उठवा लूंगी, तुम्हें मेरा पता नहीं है. मैंने कहा हेलो बाजी. हाँ, एक वो प्यार भरी सी धमकी जिसे मैं नजर आता. मैं कहा मीरा तुमने कभी सुना किसी ने सादी इमाम की नकल उतारी? तो वो सीरियस हो गई, कहती नहीं. मैं कहा तुमने सुना कभी किसी ने इसकी नकल उतारी, कभी उसकी? मैंने बहुत सारे नाम लिए. कहती नहीं. मैं कहा तुमने ये सुना होगा लोग परवेज मुशर्रफ की नकल उतारते? कहती हाँ. मैं कहा सुना होगा जॉर्ज बुश बनते हैं? हाँ. बिल क्लिंटन बनते हैं? मैं कहा तो बड़े लोगों की नकल उतारते. कहती है उसके बाद पंच लाइन ये नहीं थी, पंच लाइन थी अब तुम मुझसे वादा करो कि जब भी उतारोगे सिर्फ मेरी नकल उतारोगे. हमारी दुआ है जी, अल्लाह पाक आप दोनों इसी तरह खुश खुरम रहें, एक दूसरे के साथ रहें, इसी तरह आप फूलती और फलती रहें और इसी तरह ये आपको खुश रखें. थैंक यू वेरी मच. आप दोनों हमारे प्रोग्राम में आए और वाकई हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगाए. हमारे प्रोग्राम के एंड में हमारे डीजे एक जगलरी करके दिखाते हैं, मेरा मतलब एक गाना करके दिखाते हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं जी. बहुत सारी तालियां जी मेरे मेहमानों के लिए.